So good morning students. Today we will be discussing about various operations performed on lathe. In the last lecture we have discussed about the lathe machine, various parts of the lathe machine, types of lathe machine and lathe specifications also. And in this lecture we will see the various operations which can be performed on the lathe machine. So I would like to show you the first slide. It will give you the idea about various operations which can be performed on the lathe machine. You can see the workpiece and you can see the cutting tool also. Cutting tools are of different types of performing different kind of operations. It is generally said that on lathe machine, we can machine the workpiece using a single point cutting tool. That means most of the operations performed on lathe utilizes a single point cutting tool only. But here you can see that this is a drill bit which is having multiple cutting edges. So a tool having multi-point cutting edges can also be used for performing the operation. But this is not its important operation. It is, uh, you can see it is not the main operation which can be performed on the lathe machine. The drilling, basically we are performing a drilling operation in the workpiece. So drilling operation is basically performed on the drilling machine, but in some way it can also be performed on lathe machine. So here you can see a drill bit, which is a multi-point cutting tool, which is used to perform drilling operation on the lathe machine. But in all rest of the operation, a single point cutting tool is used, but the shape and form can vary for performing various types of operations. Here you can see a knurling operation which is used to make grip or provide grip over the workpieces, rods or bars. This is an operation which is written as facing. In this operation, workpiece is fed perpendicular to axis of the workpiece. In all these figure, this line represent the axis of the workpiece. Workpiece rotate about in its own axis, and it is the tool which is given feed. So tool can be given feed perpendicular to axis, at an angle to the axis of the workpiece, or parallel to axis of the workpiece. This can be considered as turning operation also. If we stop the operation here, you can see the workpiece diameter has been reduced from this initial diameter to this final diameter for this much length only. So this can be considered as turning operation also if it is the tool is not moved up to this point. But facing is the operation which is used to make a flat surface onto the workpiece. समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? Normally whatever operations which we perform on lathe machine, in all those operations we make cylindrical surfaces like this surface. This is a conical surface which is also axisymmetric. This is contoured surface which is also axisymmetric. This is formed surface which is axisymmetric. So in all operations we make a axisymmetric surface. Mostly it is cylindrical or conical. But facing is the operation where we produce a flat surface. So this we will discuss later on in deep. This is taper turning operation where we produce a conical surface. Workpiece is having a smaller diameter at one end and larger diameter at other end. This is contour turning where we produce a workpiece having quite complicated shape, and this surface is uh, having radius of curvature in two directions. ठीक है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट भी गोल घुमी होती है और किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट भी गोल घुमी हुई होती है. If you consider this facing or turning or taper turning operation, then this surface is having radius of curvature about this axis only. But in contour turning or form turning, the surfaces may be having two, that means it may be having radius curvature about two axes. Okay, form turning is also a contour turning, but it is performed using a form tool, where these operations are performed using a single point cutting tool. This is also a single point cutting tool, but its cutting edge is having this type of shape. That's why it is known as a form tool, and the machining using this kind of tool is known as form turning. Okay.
Chamfering is a kind of taper which is made to a very short length of the workpiece, and it is generally used to uh, make the edges slant to prevent damage to the edges. यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये फॉर्म टूल होता है जिसकी कुछ कंसिडरेबल एज लेंथ होती है, इसको हम सीधे इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, उससे क्या होता है, ये एक स्लांट या तिरछा या बेवल टाइप का बन जाता है, तो उससे इस एज को डैमेज कम होती है। साथ ही क्या होता है, जब हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो कई बार इसमें कुछ बर्न जनरेट हो जाती है, शार्प एजेस यहाँ पे हो सकते हैं एंड में यहाँ पे, तो वो ऑपरेटर के लिए हार्मफुल होते हैं, या कोई आदमी जो इसको इस्तेमाल करता है उसके लिए हार्मफुल होते हैं, तो उनको भी अपन चैम्फरिंग के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। दिस ऑपरेशन इज पार्टिंग ऑफ और कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है if we have performed operation on this portion of the workpiece and we want to remove it from the parent workpiece, तो उस केस में हम इसको कट करके अलग कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कट ऑफ ऑपरेशन। और यदि ये कुछ लेंथ तक के लिए बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं फिर ग्रूविंग ऑपरेशन, ठीक है ना। दिस इज थ्रेडिंग, वी मेक थ्रेड ऑन टू द वर्कपीस, ठीक है। दिस ऑपरेशन इज ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब होता है टू मेक अ होल इन अ वर्कपीस, but the drilling operation which is performed on lathe machine is having one speciality, and that is the hole can be drilled at the center of the workpiece only. यदि इस वर्कपीस का एंड व्यू देखें तो वो एक सर्कल आएगा, उस सर्कल के सेंटर में भी हम ड्रिलिंग कर पाएंगे। यदि आप सोचो कि सर्कल से ऑफसेट होकर कुछ हल्का से ड्रिलिंग करें तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं होता है। दिस इज द peculiarity or speciality of the drilling operation which is performed on a lathe machine on a workpiece, ठीक है। Boring operation, this operation is analyzes the internal diameter of the workpiece or previously drilled hole. सपोज कहीं पे हमने कोई कैविटी बनाई है या होल बनाया, कास्टिंग के द्वारा बनाया है या किसी ड्रिलिंग ऑपरेशन के द्वारा बना दिया है, यदि उसका डायमीटर हमें सर्टेन लेंथ तक इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम बोरिंग के द्वारा इसको चेंज कर सकते हैं। यू कैन सी दिस वाज द इनिशियल डायमीटर अप टू दिस लेंथ, but as far as this operation is performed onto the workpiece, it is going to change its diameter from this initial to this final, okay। तो यहाँ पे हम diameter enlarge करते हैं। and knurling is the operation which is used to make grips on the workpiece। यहाँ पे कुछ crisscross patterns बनाए जाते हैं जिसमें कुछ projections और depressions होते हैं, और उनकी प्रोजेक्ट्स की हाइट और डिप्रेशंस की जो डेप्थ होती है बहुत कुछ mm में ही होती है, ठीक है, जिससे यहाँ पे एक प्रकार की ग्रिप क्रिएट हो जाती है, तो इसको होल्ड करने में वो काम आती है। बट यू कैन सी दिस जो दिस टूल एंड द ऑपरेशन, दिस टूल इज entirely different from the tool which are used for performing this kind of operation, and basically this is not a machining operation, that means in this case no material is removed during the knurling operation, ठीक है। तो एक हल्का सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे ऑन अबाउट वेरियस ऑपरेशंस। इसके बाद अपन इसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, आपको यदि कोई डाउट हो यहाँ तो आप पूछ सकते हैं। सर बोरिंग और ड्रिलिंग में क्या फर्क है सर? ड्रिलिंग का मतलब होता है टू मेक अ होल फर्स्ट टाइम। कोई वर्कपीस हमें दिया गया था साबुत, उसमें एक होल हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रिलिंग, ठीक है। वेदर इट इज परफॉर्म ऑन लेथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन, दैट इज ए मटीरियल। लेकिन ड्रिलिंग का मतलब होता है कि किसी एक सॉलिड वर्कपीस में हम एक होल बना रहे हैं, और बोरिंग का मतलब होता है कि जो पहले से बना हुआ होल है उसके डायमीटर को एनलार्ज करना बोरिंग कहलाता है, ओके ठीक है। एनी अदर डाउट? नो सर। आगे चलते सर हैं। ये नर्लिंग वाला थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, अभी अपन बताएंगे। ये नर्लिंग यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक रोलर टूल होता है जिसके ऊपर कुछ क्रॉस क्रॉस में पैटर्न्स बने होते हैं, और जैसे इसमें इंडेंटेशन हम क्या करते हैं, इसको इसके तरफ प्रेस करते हैं और फिर मूव करते हैं, ठीक है। इसमें डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा नहीं होती है, हार्डली सब वहाँ पे आएगा जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस टूल के द्वारा इस वर्कपीस के ऊपर, वर्कपीस रोटेट करता रहेगा। तो उस केस में यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस तैयार हो जाते हैं जितनी लेंथ तक आप बनाना चाहते हो, तो जो वर्कपीस होता है वो होल्ड करने में उसको आसानी हो जाती है, एक प्रकार की ग्रिप यहाँ पे तैयार हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये मशीनिंग ऑपरेशन नहीं है। मशीनिंग का मतलब होता है कि इसमें चिप्स रिमूव नहीं होती हैं, बाकी जितने ऑपरेशन हैं इन सब में चिप्स रिमूव होंगी, इसमें चिप रिमूव नहीं होगी, ठीक। आगे चलते हैं। नाउ
the first operation which is performed on the lathe machine, that is known as centering. But centering is not the machining operation. But in this operation, we position the cutting tool in such a way that we position the workpiece in such a way that the axis of the workpiece coincide with the imaginary center line of the workpiece. Consider this figure. You can see a work holding device. It may be a face plate and a center, which is live center because it is mounted on the headstock, and it is used for providing rotation to the workpiece. That's why it is live center. And this center is mounted in the tailstock. That's why it is dead center. It will not provide motion to the workpiece, rotation to the workpiece. It will simply support the workpiece from the other end. तो ये जो वर्कपीस है इस शेप का, इसको दूसरे एंड में सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे डेड सेंटर है, और इसको रोटेट करने के लिए यहाँ पे लाइव सेंटर है। तो ये दोनों सेंटर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, उसको बोलते हैं इमेजिनरी सेंटर लाइन। इफ वी वांट टू परफॉर्म द टर्निंग ऑपरेशन और अदर जो भी हमने ऑपरेशन देखा उन सबको अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होता है, जो वर्कपीस होता है उसके एक्सिस को इस इमेजिनरी सेंटर लाइन से अलाइन करना होता है, कोइंसाइड कराना होता है। यदि वर्कपीस का एक्सेस इस इमेजिनरी सेंटर लाइन से ऑफसेट होगा तो हमारी मशीनिंग सही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये मशीनिंग की जाएगी, टूल यहाँ कहीं रहेगा, ये टॉप व्यू बना हुआ है, तो उस केस में पार्ट ऑफ रोटेशन वर्कपीस के एक ही रोटेशन में कुछ समय के लिए कुछ रोटेशन माने पार्ट ऑफ रोटेशन के लिए ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट आएगी और कहीं पर कम डेप्थ ऑफ कट आएगी। ठीक है ना? मान लो हमने इसको थोड़ा सा उठा के ऊपर कर दिया, तो अब यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट चेंज हो गई, कम हो जाएगी, और जब ये वाला पोर्शन जो ऊपर उठ गया था मशीन कटिंग टूल के पास आएगा तो उस केस में ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट मिलेगी टूल के लिए। तो उस केस में अनइवन कटिंग होती है, जो चिप्स जनरेट होंगी उनकी भी थिकनेस अनइवन होगी, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा होती रहेगी वहाँ पर। तो यदि हम सेंट्रिक टर्निंग करना चाहते हैं तो ये एसेंशियल होता है, ये ज़रूरी होता है कि जो वर्कपीस का एक्सेस हो वो लेथ के इमेजिनरी सेंटर लाइन से कोइंसाइड होना चाहिए। ठीक है ना? इसके लिए हम जो पहला ऑपरेशन करते हैं, दिस इज नॉट मशीनिंग ऑपरेशन, बेसिकली इट इज पोजिशनिंग ऑफ द वर्कपीस। ठीक है ना? इट इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग द जॉब इन अ बार होल्डिंग डिवाइस इज चक, फेस प्लेट और सेंटर ऑफ लेथ मशीन। It is required to turn an edge of concentric. This is very important. It is required to turn an edge of concentric. ठीक है ना? And centering provides workpiece axis with imaginary line joining live and tension. ये coincide कर देता है और जरूरी होता है। तो ये मशीनिंग ऑपरेशन नहीं है, हम वर्कपीस की यहाँ पे पोजिशनिंग कर रहे हैं जिससे कि आगे अच्छी से मशीनिंग कर पाए। ठीक है? एनी डाउट? यहाँ पे कोई डाउट आपको? अब इसमें क्या लिखा गया है कि देयर आर सम वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, इट कैन बी चक, इट कैन बी फेस प्लेट। तो ये जो आपको दिखाया गया एक फेस प्लेट है, उसमें एक ड्राइविंग डॉग लगा हुआ है और ड्राइविंग डॉग के सेंटर्स के थ्रू हमने वर्कपीस को यहाँ पर माउंट किया हुआ है। ठीक है? तो इस केस में सेंटरिंग करने के लिए हमें बार बार इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा आता है चक, जैसे ये चक है, तो चक में भी मोस्टली टू काइंड्स ऑफ चक्स आर यूज्ड, वन इज हैविंग 3 जॉ, अनदर इज हैविंग 4 जॉ। तो उसी प्रकार से इनके नाम हो जाते हैं 3 जॉ चक, 4 जॉ चक। मोस्टली 3 जॉ, ऑल 3 जॉ चक्स आर सेल्फ सेंटरिंग चक्स। उसका मतलब होता है कि जब हम 3 जॉ चक के एक जॉ को मूव कराते हैं तो उसके तीनों जॉ ऑटोमेटिकली एक साथ साइमल्टेनियसली या तो अंदर या बाहर की तरफ मूव होते हैं। ठीक है ना? तो उस केस में क्या होता है कि जो वर्कपीस रहता है वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है, वर्कपीस का एक्सेस ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है इमेजिनरी सेंटर लाइन के साथ में। दैट मीन्स वी डू नॉट हैव टू परफॉर्म सेंटरिंग। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर यूजिंग अ 4 जॉ चक, तो 4 जॉ चक के चारों जॉ इंडिपेंडेंटली अलग अलग मूव करते हैं। ठीक है? उस केस में प्रिसाइज वे में हमें इसकी सेंटरिंग करनी पड़ती है। ठीक? कोई डाउट या आगे चले? Now you can see this slide. This is of facing. By facing we prepare this kind of surface. This is a flat surface. तो वर्कपीस के एक एंड को फ्लैट करना फेसिंग कहलाता है। To cut a flat surface perpendicular to the workpiece rotational axis. ठीक है? Normally it is made at the end. ये वर्कपीस के एंड में बनाया जाता है। ठीक है?
यदि वर्क पीस लंबा है तो हम इसमें हल्का सा ड्रिल बना देते हैं, छोटा सा कुछ पर्टिकुलर लेंथ का, और उसमें रेस्ट करता है डेड सेंटर, और वो इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? फॉर सपोर्टिंग द वर्क पीस फ्रॉम द अदर एंड। ठीक। अब फेसिंग टूल इज माउंटेड इनटू द टूल पोस्ट। ठीक है, नॉर्मली सारे के सारे जो टूल्स होते हैं वो टूल पोस्ट पे ही माउंट किए जाते हैं, चाहे वो टर्निंग टूल हो, थ्रेडिंग टूल हो, पार्टिंग ऑफ हो, चैम्फरिंग हो, कुछ भी कर रहा हूँ। सिर्फ ड्रिलिंग के लिए हमें जो टूल माउंट करना होता है वो टेल स्टॉक पर माउंट होता है। इतना आपको समझना है, रटना है, याद करना है। कहीं ऑपरेशन में लिखा हो या ना लिखा हो, सारे के सारे जो टूल लेथ मशीन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए काम में आएंगे, वो सारे के सारे टूल्स कहाँ पे माउंट किए जाएंगे? टूल पोस्ट पे माउंट किए जाएंगे। सिर्फ ड्रिलिंग ऑपरेशन ऐसा होता है जिसमें जो टूल माउंट होता है वो कहाँ पे माउंट होता है? बता सकता है कोई? टेल स्टॉक। टूल इज माउंटेड ऑन द टेल स्टॉक। ठीक है, तो ये वो ऑपरेशन है जिसमें हम एक फ्लैट सरफेस बनाते हैं, और बाकी जितने ऑपरेशंस होते हैं उन सभी में सिलिंड्रिकल सरफेसेस यहाँ पर बनती है। The tool is fed perpendicularly across the workpiece rotational axis. ये feed direction है, tool इस direction में feed किया जाता है। It is the only operation performed on lathe by which a flat surface is produced. तो यहाँ पे अकेला ऑपरेशन है लेथ मशीन का जिसमें फ्लैट सरफेस बनती है, अदरवाइज जितने ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं सभी में सिलिंड्रिकल, कॉनिकल, कंटूर सरफेस वहाँ पर बनती है। ओके, एनी डाउट? यदि आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज अपन आगे चलते हैं। कोई डाउट? सर बोलो। सर ये फीड डायरेक्शन कैसे, मतलब ये समझ नहीं आ रहा सर, ये कैसे यहाँ पे शो कर रहा है? देखो, फीड का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द टूल। ठीक है, और कटिंग या यस सर। प्राइमरी मोशन का मतलब होता है मोशन ऑफ द वर्क पीस। पहले बता चुका हूं मैं आपको। अब इसमें जब हमें फ्लैट सरफेस बनाना है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब टूल वर्क पीस के एक्सिस के परपेंडिकुलरली मूव होगा। तो उस केस में कटिंग एज को मैंने इसको ऐसा थोड़ा स्लैंट किया जाता है, तो जब ये मशीनिंग करता है तो इस सरफेस को फ्लैट बनाते हुए चला जाता है, और यहाँ पे पूरा का पूरा मटेरियल रिमूव हो जाता है, जो कि इस फिगर में, इमेज में विजिबल है। तो इस ऑपरेशन को अपन बोलते हैं फेसिंग, और जो टूल का मूवमेंट है उस जिसको फीड बोलते हैं वो होता है परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द वर्कपीस। ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट? आगे चलते हैं। नाउ कम्स द टर्निंग। शुरुआत का अपना जो ऑपरेशन है सेंटरिंग, दिस इज द पोजीशनिंग ऑफ द वर्कपीस, दिस इज नॉट मशीनिंग ऑपरेशन। फेसिंग मशीनिंग ऑपरेशन होता है जिसमें फ्लैट सरफेस बनाई जाती है। नॉर्मली वर्कपीस के एक एंड को फ्लैट करने का ही तरीका होता है। ठीक है, अब आता है टर्निंग ऑपरेशन। सो बाय टर्निंग ऑपरेशन भी प्रोड्यूस अ सिलिंड्रिकल सरफेस। यहाँ पे सिलिंड्रिकल सरफेस बनाई जाती है। इसमें 3 फिगर आपको दिख रहे होंगे। एक इमेज है जिसमें ये टूल है और ये वर्क पीस है। ये भी इमेज है, इसमें टूल है वर्क पीस में, इसमें आपको यहाँ पे चिप रिमूव होती हुई दिख रही होगी। ठीक है, सो प्रोड्यूसिंग सिलिंड्रिकल, कॉनिकल और कंटूर सरफेस ऑन द वर्क पीस इज नोन एज टर्निंग। ठीक, ये जो ऑपरेशन जिसमें कि सिलिंड्रिकल सरफेस या कंटूर मतलब टेपर्ड सरफेस अपन बनाते हैं या कंटूर सरफेस बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं टर्निंग ऑपरेशन। वर्कपीस इज हैविंग रोटरी मोशन एंड टूल इज फेड अगेंस्ट द वर्कपीस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस। टूल को वर्कपीस के एक्सिस के पैरेलली मूव करना पड़ता है। दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज प्लेन टर्निंग और स्ट्रेट टर्निंग। यदि मैं अकेला इसका नाम टर्निंग लिखूं तो भी वही है, प्लेन टर्निंग लिखूं तो भी वही है, और स्ट्रेट टर्निंग लिखूं तो भी वही है। ठीक है, नाउ वेरियस काइंड्स ऑफ टर्निंग ऑपरेशंस कैन बी क्लासिफाइड इन 6 ग्रुप्स: प्लेन टर्निंग, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग, सेंट्रिक टर्निंग, रफ टर्निंग एंड फिनिश टर्निंग। प्लेन टर्निंग मैंने आपको बता ही दिया, हम वर्कपीस को डायमीटर को कम करते हैं ओवर एंटायर लेंथ और सर्टेन लेंथ। हम चाहें तो वर्कपीस की पूरी लेंथ तक डायमीटर इतना बना सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। इन दैट केस इट इज नोन एज प्लेन टर्निंग। व्हाट अबाउट स्टेप टर्निंग? स्टेप टर्निंग में क्या कर सकते हैं हम कि ये जो डायमीटर है यहाँ पे हमने और कम किया, दैट मीन्स दिस वर्कपीस इज हैविंग डिफरेंट डायमीटर्स एट डिफरेंट लेंथ। यहाँ तक कम डायमीटर कर दिया, यहाँ पे और बढ़ा दिया, यहाँ पे और बढ़ा दिया, तो इसमें कुछ प्रकार के स्टेप्स आपको दिखने लगेंगे।
दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टेप टर्निंग। तो स्टेप टर्निंग का मतलब होता है एक ही वर्क पीस के ऊपर टर्निंग के दौरान अलग अलग डायमीटर बनाना, अलग अलग लेंथ पे। हो सकता है यहाँ पर डायमीटर कम हो, इधर पे ज़्यादा हो, इधर पे और ज़्यादा हो, तब भी ये स्टेप टर्निंग है। और यदि यहाँ सबसे कम है, यहाँ और ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा डायमीटर है, तब भी उसको अपन स्टेप टर्निंग ही बोलेंगे। टेपर टर्निंग का मतलब होता है टू मेक अ कोनिकल, टू कट अ कोनिकल सरफेस ऑन अ वर्क पीस, ठीक है, दैट इज नोन एज टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग में इस तरफ डायमीटर कम हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, या उल्टा हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा डायमीटर हो सकता है, यहाँ पे कम हो सकता है, तब भी वो टेपर टर्निंग कहलाता है, ठीक है। अब लिखा है इसेंट्रिक टर्निंग। ये जितनी भी टर्निंग अपन ने डिस्क्राइब की हैं, या जितनी टर्निंग अपन पढ़ते हैं, वो सारी की सारी सेंट्रिक टर्निंग होती हैं। हालांकि सेंट्रिक वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये अंडरस्टूड होता है कि वर्कपीस का जो एक्सिस होगा वो कोइंसाइड करेगा लेथ के इमेजिनरी सेंट्रल लाइन से। उस केस में ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस यहाँ पे बनी हुई है, इसका एक्सिस भी कोइंसाइड करेगा लेथ के इमेजिनरी सेंट्रल लाइन से। इफ वी वांट टू कट और वी वांट टू परफॉर्म इसेंट्रिक टर्निंग, उस केस में for part of length of the workpiece the diameter is different and its axis of rotation is also different। जो आपको भी मैं फिगर दिखाऊंगा उसमें आपको समझ में आएगा, ऐसी शायद समझ में नहीं आए तो अभी अपन इसको छोड़ते हैं, आगे स्लाइड है उस पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। रफ टर्निंग इज द ऑपरेशन वेयर we reduce or remove large amount of material from the workpiece, and we do not bother while performing the operation, we do not bother about the surface finish of the machined surface। मान लो ये मशीन सरफेस है तो इसकी कुछ सरफेस फिनिश होती है, वो रफ हो सकती है, वो फिनिश हो सकती है। तो रफ टर्निंग ऑपरेशन हम कब करते हैं? जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना हो कम समय में, कम पास में, उस केस में रफ टर्निंग ऑपरेशन किया जाता है। रफ टर्निंग से हम जो डायमीटर रहता है वो हम डिजायर्ड के पास लाते हैं और बाद में फिनिश टर्निंग ऑपरेशन करते हैं। दोनों केस में अलग अलग टूल भी इस्तेमाल हो सकता है और दोनों केस में मशीनिंग पैरामीटर्स लाइक कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट तो अलग अलग होते ही हैं। फिनिश टर्निंग इज द ऑपरेशन वेयर वी प्रोड्यूस अ स्मूथ सरफेस फिनिश। जो सरफेस यहाँ पे बनती है उसकी स्मूथ फिनिश, सरफेस फिनिश यहाँ पे होती है। सो दीज आर सम ऑफ द टर्निंग ऑपरेशंस। यहाँ पे यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो नोट करके। सर टेपर टर्निंग सर, हाँ अभी आगे सर बता एक रहा बार हूँ। फिर टेपर से टर्निंग में रिपीट क्या, कर। कोनिकल सर्फेस बनाते हैं, आगे स्लाइड भी है उसकी। कोनिकल सरफेस अपन बनाते हैं कि यहाँ पे कम डायमीटर है और यहाँ पे ज्यादा डायमीटर है, मतलब अपन ने तिरछा मूव किया, ऐसा मूव किया कटिंग टूल को, ठीक है, वो ओके टेपर ओके। टर्निंग। सर ये रफ रफ का टर्निंग मत में अगर चिप्स के फॉर्म में वर्क पीस रफ मतलब टर्निंग मटेरियल रिमूव होगा तो सर तो फिनिश हो जाएगा। नहीं, रफ टर्निंग में क्या होगा, हम मशीनिंग पैरामीटर ऐसे रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल हमारे यहाँ पर रिमूव हो। एक्चुअली क्या होता है, एक तरीका है मशीनिंग टाइम कम करने का। तो मान लो वर्कपीस का इतना डायमीटर है, ये सब कुछ 50 mm डायमीटर और ये 40 mm डायमीटर है, तो 50 mm डायमीटर से सीधे सीधे 40 mm तक सिंगल पास में नहीं पहुंचा जा सकता है, तो इसमें मल्टीपल पासेस की आवश्यकता पड़ती है। अब मल्टी पास में जो हमने शुरुआत के 1-2 पास लिए उसमें ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल रिमूव हो जाए और वर्कपीस का डायमीटर 40 के करीब, 42 या 41 ऐसा कुछ आ जाए। तो वो जो ऑपरेशंस होंगे वो कहलाएंगे रफ टर्निंग, जिसमें आपको सरफेस फिनिश पुअर मिलेगी। उसको आप जब हाथ से छुओगे या आप विजुअल इंस्पेक्शन करोगे तो आपको वो बेकार दिखेगी। लेकिन फिनिश टर्निंग बाद के जो ऑपरेशन होंगे, 1 या 2 ऑपरेशन, उसमें हम क्या करेंगे, मतलब इस प्रकार का टूल और मशीनिंग पैरामीटर्स इस्तेमाल करेंगे कि सरफेस फिनिश हमको स्मूथ मिलने लग जाएगी, तो उसको बोलते हैं फिनिश टर्निंग। ठीक, यस सर। आगे चलते हैं। नाउ स्टेप टर्निंग। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक ही वर्कपीस के ऊपर अलग अलग लेंथ पे यदि अपन अलग अलग डायमीटर मशीन करते हैं तो देन इट इज नोन एज स्टेप टर्निंग। ये उल्टा भी हो सकता है, इस तरफ डायमीटर ज़्यादा हो सकता है, बीच में कम हो सकता है ना, और कम हो सकता है, या यहाँ पे ज़्यादा डायमीटर, यहाँ पे कम है, फिर ज़्यादा डायमीटर है। मतलब हम क्या कर रहे होते हैं, अलग अलग लेंथ पे अलग अलग डायमीटर एक वर्कपीस के अंदर बना रहे होते हैं, ठीक है, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है। ठीक, तो इसको अपन बोलते हैं स्टेप टर्निंग ऑपरेशन। देन कम्स टेपर टर्निंग। अब टेपर टर्निंग में हम क्या कर रहे हैं, टूल का मूवमेंट इस प्रकार से करते हैं कि द टूल मूव्स अलोंग एट एन एंगल टू द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस। ठीक है ना, आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि टूल की मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी
तो यहाँ से ज़्यादा मटेरियल मूव करेगा, इस तरफ से कम मटेरियल, यहाँ पे मिनिमम मटेरियल मूव करेगा। तो इस केस में जो वर्कपीस आपका मशीन होगा, इसकी जो सरफेस आएगी, उस सरफेस में एक तरफ डायमीटर कम होगा, दूसरी तरफ ज़्यादा होगा, और कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग टाइप का होगा। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, राइट साइड में डायमीटर ज़्यादा हो सकता है, लेफ्ट साइड में डायमीटर कम हो सकता है, बट इट इज ऑल्सो टेपर टर्निंग ऑपरेशन। टूल को हम डायरेक्टली ऐसे मूव नहीं कर सकते हैं। ऐसे मूव करने के दो तरीके हैं। वी गिव 2 फीड साइमल्टेनियसली टू द टूल, लॉन्गिट्यूडनल फीड एंड द क्रॉस फीड। अब यदि आपको कैरेज याद है, कैरेज के ऊपर सैडल है, सैडल में फिर वहाँ पे क्रॉस स्लाइड है, कंपाउंड रेस्ट है और टूल पोस्ट है, होता है नहीं होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल फीड देने के लिए हमें पूरी के पूरे कैरेज को मूव करना पड़ेगा, और क्रॉस फीड देने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस स्लाइड को मूव करना पड़ेगा। तो एक मैनुअल ऑपरेटर जो एक हाथ से कैरेज को मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, और दूसरे हाथ से वो क्रॉस स्लाइड को मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द वर्कपीस, तो उस केस में आपको जो रिजल्टेंट मोशन मिलेगा टूल का, वो या तो इस प्रकार का होगा या इस प्रकार का होगा। ठीक है ना? तो ये जो हमें रिजल्टेंट सरफेस यहाँ पर बन के मिलेगी, वो एक कंटूर्ड कॉनिकल सरफेस होगी, और इस प्रकार के ऑपरेशन को अपन बोलते हैं टेपर टर्निंग ऑपरेशन। ठीक है, there are 5 methods of taper turning. I am not going to discuss in detail these methods. You can simply see the name of various types of taper turning method. First method is known as taper turning by combining feed. So we are combining the feed in this way. We are giving the feed to the cutting tool in two directions simultaneously, longitudinal feed and क्रॉस फीड। तो जब ये दोनों फीड हम एक साथ टूल को देते हैं, तो हमें रिजल्टेंट जो फीड मिलेगी वो या तो इस प्रकार की होगी या इस प्रकार की होगी। तो इसको बोलते हैं टेपर टर्निंग बाय कंबाइनिंग फीड, एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग अ टेपर। दूसरा है बाय स्वेलिंग द कंपाउंड रेस्ट, बाय टेल स्टॉक सेट ओवर, बाय यूजिंग टेपर टर्निंग अटैचमेंट एंड बाय यूजिंग अ फॉर्म टूल। तो जो ये अलग चीज़ है, ये तीनों अलग मेथड है, और फॉर्म टूल का मैंने आपको यूज यहाँ पे बताया था। ठीक है, ये जो चैम्फरिंग हो रही है, ये एक प्रकार की टेपर टर्निंग ही है, और ये बहुत कम लेंथ में की जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की यहाँ पे टेपर टर्निंग ही है। ठीक, यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ। ये एक्चुअली ये मेथड्स आपके उसमें नहीं दी गई हैं, लेकिन मैंने लिख दी हैं। इस टाइम अपन को परमिट करता है, आगे जाके जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगा बाद में। समझ में आ गया कि टूल को हमें, जो मैं ऑपरेटर रहेगा, उसको दोनों डायरेक्शन में साथ साथ मूव करना पड़ेगा। तो एक हाथ से वो कैरेज को मूव करेगा, लॉन्गिट्यूडनल फीड मिलेगी, दूसरे हाथ से वो क्रॉस स्लाइड को मूव करेगा तो क्रॉस फीड मिलेगी, और रिजल्टेंट फीड फिर इन दोनों में से किसी एक प्रकार की हो जाएगी, और टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक, देन कम्स द इसेंट्रिक टर्निंग। नाउ दिस ऑपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आपका अटेंशन लगेगा थोड़ा सा। हमारे पास एक वर्क पीस था ऐसा, जो कंप्लीट वर्क पीस था। इट वाज हैविंग दिस मच डायमीटर एंड दिस मच लेंथ। ठीक है, उस वर्क पीस को हमें ऐसे मशीन करना है कि यहाँ पे जो डायमीटर है वो कम है, और वो एक तरफ ऑफसेट हुआ है। यू कैन सी एक्सिस ऑफ द जॉब एंड इमेजिनरी सेंटर लाइन ऑफ द लेथ मशीन। ठीक है ना? अब इसको मशीन करने का तरीका क्या है कि वी हैव टू यूज अ 4 jaw चक। ठीक है, जिसमें कि चारों जॉ इंडिपेंडेंटली मूव होते हैं। इन दिस इमेज यू कैन सी अ 3 jaw चक। मोस्टली ऑल 3 jaw चकल्स आर सेल्फ सेंटरिंग चक, लेकिन कुछ 3 jaw चक आजकल अवेलेबल हो रहे हैं जिसमें उसमें भी इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? जॉ का। तो उस केस में वर्कपीस एक तरफ से ऑफसेट होने लगता है। अब आपको दिख रहा होगा इस फिगर में कि दिस इज द सर्कल ऑफ द चक। ये माउंट किया गया स्पिंडल पे, तो सेंटर जो लेथ मशीन का है वो यहाँ पे है। हमने वर्कपीस को इसमें ऑफसेट किया हुआ है। तो ऑफसेट करने से क्या होगा, कहीं से पार्ट ऑफ रोटेशन में कहीं से ज़्यादा चिप मूव करेगा, कहीं से कम चिप मूव करेगा। ठीक है, तो जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये जो मशीनिंग होती है ये वर्कपीस की एक तरफ आपको मिलने लग जाती है। यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज ऑल्सो। ठीक है, तो हमारे कुछ डिवाइसेस होती हैं लाइक क्रैंकशाफ्ट, उस केस में इसेंट्रिक टर्निंग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसेंट्रिक टर्निंग में ये ज़रूरी होता है कि वर्कपीस के एक्सिस को ऑफसेट किया जाए, किससे? लेथ मशीन के इमेजिनरी सेंटर लाइन से। तो अब इतने पोर्शन के लिए, फॉर दिस मच पोर्शन ऑफ द वर्कपीस दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड फॉर दिस मच पोर्शन ऑफ द वर्कपीस दिस इज द एक्सिस ऑफ द रोटेशन।
ठीक है ना। तो इस प्रकार की मशीनिंग के लिए हमें इसेंट्रिक टर्निंग यहाँ पर करनी होती है। ठीक, वर्कपीस को हम इस प्रकार से पोजीशन करते हैं, होल्ड कराते हैं कि वो इसेंट्रिक टर्निंग उस पर परफॉर्म हो पाए। एनी डाउट, यहाँ पे कोई डाउट है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। चैम्परिंग, चैम्परिंग ऑपरेशन is done at the end of the workpiece. It is a kind of bevel or taper which is provided or generated over very small length. ये 2-3 mm की कुछ लेंथ होती है जिस पे परफॉर्म किया जाता है। Chambers are provided to prevent damage to the edges. इन एज यदि ये सीधे स्ट्रेट रहेंगे तो उस केस में एज डैमेज हो जाते हैं, तो उसको डैमेज प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी चैम्परिंग कर देते हैं। चैम्परिंग ऑल्सो रिमूव्स द बर्न्स एंड शार्प एजेस, ये शार्प एजेस और वर्स यहाँ से रिमूव करता है एंड दस मेक्स द हैंडलिंग ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट सेफ, जिससे कि फिनिश प्रोडक्ट को हम सेफली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकें। ठीक है। Chamfering can be done by a form tool having angle equal to chamfer which is generally kept at 45 degree। मतलब ये जो एंगल रहेगा ये 45 डिग्री का रहेगा, तो 45 डिग्री का चैम्फर यहाँ पे हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। एनी डाउट इन चैम्फरिंग? नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देन कम्स थ्रेडिंग। यू नो व्हाट इज अ थ्रेड? ठीक है ना। थ्रेड्स आर हेलिकल ग्रूव्स प्रोवाइडेड ओवर एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल सरफेस ऑन द वर्कपीस। ठीक है। नॉर्मली आपने नट और बोल्ट देखा होगा। नट इज द पोर्शन विच इज हैविंग इंटरनल थ्रेड्स एंड बोल्ट इज द पोर्शन विच इज हैविंग external threads. So we can cut internal as well as external threads on the lathe machine and that operation is known as threading. ठीक है ना। In this figure you can see we are performing external threads, that means we are generating threads at the external surface of the workpiece, and in these two figures you can see internal threads have been made on the lathe machine. ठीक है। Thread cutting is an operation performed on lathe to produce threads by using a tool whose shape will be same as that of the thread. मतलब इसका मतलब होता है ये थ्रेड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, स्क्वायर थ्रेड है, वी थ्रेड है, एक्मे थ्रेड है, विटवर्थ थ्रेड है। तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग टूल यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू कैन सी दिस कटिंग टूल विच इज हैविंग वी शेप। ठीक है ना। तो वी शेप टाइप का मतलब एक्मे थ्रेड से यहाँ पे हम इसीलिए कट कर सकते हैं। ये स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है। If we use a square type tool, in that case यहाँ पे स्क्वायर थ्रेड्स यहाँ पे जनरेट हो जाती हैं। नॉर्मली हमारे जो लीड स्क्रू होता है that lead screw is having square threads। ठीक है। नाउ एक आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पिच है ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक इतने लेंथ में यहाँ पे थ्रेड्स जनरेट की गई हैं। This is the direction of feed of the feed of the cutting tool and this is the direction of rotation of the workpiece. Pitch is the distance between similar points on two consecutive threads। यदि हम इस फिगर को देखते हैं तो एक उभरा हुआ पॉइंट ए है और नेक्स्ट थ्रेड पर उभरा हुआ पॉइंट ए है, तो इनके बीच की जो एक्सियल डिस्टेंस होती है विच इज मेजर्ड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द वर्कपीस वो कहलाती है पिच। पिच के अनुसार हमको कुछ रिलेशन डेवलप करना पड़ता है इन द रिलेशन इन द रोटेशन ऑफ द वर्कपीस एंड द मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल। सो सी दिस फिगर। इस फिगर में क्या हो रहा है, दिस इज कैरेज, टोल पोस्ट एंड द कटिंग टूल। दिस इज द वर्कपीस mounted using a center and it has been supported at the other end by the tail stop। यहाँ पे आपको ये जो डिवाइस दिख रही है दिस इज लीड स्क्रू। लीड स्क्रू इज कनेक्टेड टू द गियरिंग अरेंजमेंट ऑफ द हेड स्टॉक ऑन द लेथ मशीन। तो इस लीड स्क्रू को हम यहाँ पर रोटेट कराते हैं। रोटेट करने के बाद इस कैरेज का कांटेक्ट हम किसके साथ करते हैं, इस लीड स्क्रू के साथ करते हैं। तो लीड स्क्रू के ऊपर एक यहाँ पे एक स्क्रू लगा रहता है जो कि उसके दो टुकड़े होते हैं, आधा आधा, हाफ हाफ, और वो हाफ जब हम एक लीवर इसमें प्रेस करते हैं कैरेज पे तो वो दोनों टुकड़े पास में आ जाते हैं और वो किसको पकड़ लेते हैं, लीड स्क्रू पकड़ लेते हैं। तो लीड स्क्रू यहाँ पे जो रोटेट हो रहा है तो होता है उसका मोशन उन हाफ स्प्लिट नट को चला जाता है और चूंकि वो माउंट होते हैं कैरेज पे तो कैरेज को ट्रांसफर होता चला जाता है। सो इन दिस वे वी कैन मेक the motion of movement of the carriage and hence to the tool automatically।
जब भी हम थ्रेडिंग ऑपरेशन करेंगे उस केस में लीड स्क्रू का यूज जरूरी होगा. विदाउट यूजिंग लीड स्क्रू यू कैन नॉट डू द थ्रेडिंग. ड्रिलिंग इज द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग अ होल. ठीक है ना. बट दिस इज एन स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन अ लेथ मशीन. ठीक है ना. इस केस में जो ड्रिलिंग आपको दिख रही होगी ये इंपॉर्टेंट होता है कि वी कैन मेक अ होल इन अ वर्क पीस ऑन अ लेथ मशीन एट इट्स सेंटर ओनली. और जो ड्रिल रहेगा दैट विल बी माउंटेड ऑन द ड्रिल चक. और वो कहाँ पे लगा होगा दैट इज माउंटेड ऑन द टेल स्टॉक. ठीक है. ड्रिल बिट रिमेन्स स्टेशनरी एंड द वर्क पीस रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ठीक है. नॉर्मली वर्क पीस स्टेशनरी होता है ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान जब ड्रिलिंग मशीन पे किया जाता है और ड्रिल बिट रोटेट होता रहता है जैसा कि आपने कुछ वीडियो में देखा होगा. लेकिन जो और ड्रिलिंग ऑपरेशन लेथ मशीन पर परफॉर्म किया जाता है उसमें ड्रिल स्टेशनरी रहता है. ये सिर्फ आगे जाता है और वर्क पीस रोटेट करता रहता है. नर्लिंग ऑपरेशन होता है जिसमें हम वर्क पीस के एंड पे ग्रिप बनाते हैं. इसके लिए नर्लिंग टूल है जिसमें कि रोलर्स हैं. इसको हम माउंट करते हैं चक पे और टूल पोस्ट पे और इसको प्रेस करते हैं और प्रेस करने के साथ साथ इस डायरेक्शन में फीड देते हैं. तो इसके जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं एंड वी कैन हैव द प्रोजेक्शंस ऑन द वर्कशॉप. तो इससे ग्रिप यहाँ पर जनरेट हो जाती है. तो दीज आर सम ऑफ द ऑपरेशंस. आपके यदि कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं. कुछ सेकंड का टाइम यहाँ पे बचा हुआ है. नो क्वेश्चन. No, sir. ओके बेटे.